I would now like to invite on stage, along with Shri Kuvar Narayan, Shri Sitakant Mahapatra ji, Mr. Liberhan, Shri Paresh Nath, and Satyanand Nirupam and Giriraj Kiradu on stage to light the inaugural lamp as a formal opening of the Samanvay IHC Indian Languages Festival. As Mr. Liberhan just said, that Paresh Nath ji has been all through very supportive of this endeavor. He, apart from being the editor and publisher of Delhi Press magazines, is a well-wisher of this festival in more ways than one. इस औपचारिक उद्घाटन के बाद हम भाषा महोत्सव के दूसरे पैगाम पर पहुंचे हैं और हम भाषा चर्चा की ओर अपना रुख करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं श्री कुंवर नारायण, श्री दलीप कौर तिवाना, सितांशु यशस्चंद्र, श्री अशोक वाजपेयी, श्री लक्ष्मण गायकवाड़, श्री आलोक राय। विषय है इज देयर एन इंडियन लिटरेचर। I would now request our panelists to please come on stage and take their seats. I have already introduced to you our panelists, Shri Kuvar Narayan, Daleep Kaur Tiwana, Sitanshu Yashashchandra, Lakshman Gaikwad, and Alok Rai. Our last panelist, Shri Ashok Vajpayee, needs no introduction. A Hindi poet, critic, translator, editor, and culture activist. He is a major cultural figure of India with several books of poetry, criticism in Hindi, art, and in English to his credit. He is widely recognized as an outstanding promoter of culture and an innovative institution builder. I once again invite all our panelists on stage. And I request Shri K. Sachidanandan to moderate the session. Thank you. Friends, we have a very distinguished panel to discuss a topic that looks innocuously simple, which I hope to complexify a bit to begin with. We have eminent writers, thinkers, and academics to discuss this issue, whether there is an Indian literature, which also means should we speak about Indian literature in the plural or in the singular. In fact, there are several positions on this, mainly maybe three. I remember once Nihal Ranjan Ray, a major Bengali critic, denying that there is an Indian literature at all. He said, literature is based on language, and since there is no single Indian language, there cannot be an Indian literature in the singular. But we have also heard the famous saying, which is almost a dictum, that S. Radhakrishnan had was responsible for. He said Indian literature is one, even though it is written in different languages. Sahitya Academy also, at least to begin with, had adopted this as the Academy's slogan. Begin with Lakshman Gaikwad here because he is sitting near me, so let me start with him. आप हिंदी में बोल सकते हैं.
जैसे मराठी साहित्य के संदर्भ में क्या भारतीय साहित्य का वो परिकल्पना क्या होगा, कैसे आप और आपको एक दलित साहित्यकार भी मानते हैं क्या? जो हाशिए से आप जब देखते हैं भारतीय साहित्य को, आपको क्या लगता है ये भारतीय साहित्य भारतीय ही है या आप सोचते हैं फॉर एग्जाम्पल क्या भारतीय साहित्य एक सवर्ण साहित्य है या दलित साहित्य का उसमें क्या जगह है? आप नहीं, आप यहाँ से बोलिए, ये है आपके पास है माइक, सुनाई दे। जी सुनाई दे। मैं प्रथम इस आयोजन के लिए जो मुझे संस्था और उनके इधर भी हाँ ये ठीक, हाँ ये ठीक, और मेरे साथ जो सहयोगी है IEHC भारतीय भाषा का समन्वय के आज के भाषा सम्मेलन के संयोजक को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो उपसंयोजक है उनको भी बधाई देता हूं। दोस्तों, आज मुझे इस भाषा सम्मेलन में सहयोग लेते हुए खुशी इस बात की है कि आज ज़रूरत है कि भारत में भाषा के बारे में नई तरीके से समन्वय हम कैसा ला सकते हैं इसी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि मेरे जैसे को आज लगता है कि मराठी भाषा नई शताब्दी में मुकुंद राज से लेकर ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, इनका सबका लिटरेचर जो साहित्य था वो मराठी से शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मर्यादा या भाषा के उसी के लिए कभी साहित्य नहीं लिखा। पूरे भारतीय भाषा के कल्याण के या सब सामान्य लोगों के लिए उन्होंने वो साहित्य लिखा था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ज्ञानेश्वरी में जो ज्ञानेश्वर लिखते हैं, दुरिताचे तिमिर जावो जे जे वांछिल तेथे लाहो प्राणी मात्र, यानी इसका मतलब है कि जो गोर गरीब जो दुखी कष्टी लोग हैं उनका सबका दुख भय खत्म हो और दुनिया के सभी प्राणियों को आनंदमय जीवन जीने का सहारा मिले, ऐसी याचना करने वाली मराठी कवि थी। इतना ही नहीं तो तुकाराम बोलते थे कि देह देहाचे मंदिर, आत्मा हाच परमेश्वर। इतना ही नहीं, तुझं आहे तुझं पासी पण तू जागा चुकलासी, यानी सब कुछ तेरे पास है लेकिन तू गलती से इधर उधर घूम रहा है, तो पहले देख ले तेरे बाजू में ही सब कुछ है। वैसे उसी तरह हमारे भारत के भाषा का भी वही हुआ है कि समन्वय के बारे में मैं जिस तबके से आया हूँ, डीनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स का संगठन चलाता हूँ और जिस भाषा में मैं काम करता हूँ, तो मेरी जो कौम की जाति है करीबन 250-300 जनजाति के लोग हैं और 250-300 जनजाति के 250-300 भाषा है। हमारे भारत में 5000 से भी ज़्यादा राजे थे, महाराजे, उनकी सबकी भाषा अलग अलग थी। लेकिन आज हमारे देश में साहित्य का अकादमी की तरफ से देखा जाए तो 24 लैंग्वेजेस में हमारी संस्था काम करती है। लेकिन मेरे जैसे को ये लगता है कि ये भाषा क्यों पैदा हुई है? ये भाषा इसलिए पैदा हुई है कि इंसान इंसानियत को समझ ले और माँ अपने बेटे को जब जब भूख लगती है, उसको रोटी लगती है, कि वो यदि इसीलिए मदर टंग कहा जाता है कि बच्चे का दुख माँ को समझ में जल्दी आ जाता है और माँ की भाषा बच्चा सीख लेता है। लेकिन हमारे देश में ये बात ऐसी हो गई है कि सब भाषा के अलग अलग बच्चे हैं और सबकी एक अलग अलग अपना अपना रोना है। कौन क्या भाषा में रो रहा है ये कुछ समझ में अपने को समझ में नहीं आता और क्यों रो रहा है ये भी मालूम नहीं पड़ता। कन्नड़ वाले क्यों रो रहे, मराठी वाले क्यों रो रहे, तमिल वाले क्यों रो रहे, इसकी भाषा ये कड़ी जोड़ने के लिए
अपनी भारत माता को एक भाषा समझने की जरूरत थी, लेकिन अपनी भारत माता को सभी का दुख देखने के लिए, सबका समन्वय रखने के लिए भारत माता के पास ही हमारे देश में एक कमजोरी है कि एक भाषा नहीं है। इसलिए आज हर भाषा के लोग इतने दुखी कष्टी है। जब जब मेरा जैसा लड़का जाता है उनका दुख बांटने को, तो उनकी भाषा मुझे आती नहीं, ना मेरी भाषा उसके समझ में नहीं आती नहीं। ये जो हालत हमारे देश में बनी है, इसी के ऊपर भी हमको ध्यान देना होगा साहित्यकारों को। साहित्य अपनी अपनी भाषा में लिखा जा रहा है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर आज मैंने 8-10 किताबें लिखी है, मराठी में लिखा हूँ, हिंदी में आई है, अंग्रेजी में आई है, अन्य भाषा में आई है, इसीलिए मेरा समन्वय अन्य भाषा से जुड़ा। अगर मैं एक ही भाषा में रहता था तो हम तो भारतीय है, हम सभी भाई भाई बोलते हैं, लेकिन हम कभी भाई भाई नहीं है, हम हमेशा बिखरे बिखरे हैं, समन्वय नहीं है हमारे में। अब भी बेलगांव में कि कन्नड़ा क्यों नहीं बोला जाता, इसी के लिए महानगर पालिका बर्खास्त हो गई। पहले कभी भाषा अपना ज्ञान औरों को देती थी, अभी भाषा इतनी सी कुर्सी हो गई है, वो बोलती कि मेरी हद तक रहने दो और कोई इसको बातचीत न करे। तो ये जो सिलसिला चल रहा है हमारा, तो इसी के तरफ भी ध्यान हमको देना होगा। और इसीलिए मैं इस स्तर पर, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हम, जैसे कि संस्कृत भाषा हमारे देश में थी, संस्कृत भाषा इसीलिए क्यों आज गई, क्योंकि संस्कृत ने अपने आम लोगों की भाषा बनने में नाकाम हुई है। संस्कृत ने हमेशा के लिए दलित, उच्चवर्णीय, स्वर्ण और आदिवासी इनमें भेदभाव किया। भेदभाव करने से अभी हर दलित और अछूत और सब नीचे स्तर के लोग बोलते हैं कि ये भाषा ने तो हमारा शोषण किया है, तो हम ये भाषा क्यों बोले। तो आज हालत ये हो गई कि जिसके लिए संस्कृत थी, अभी उसकी भी संस्कृत नहीं रही है, अभी खाली पाठ्य पुस्तक में खाली संस्कृत रही है। उर्दू भी आम लोगों तक भाषा गई थी, लेकिन उर्दू का भी हाल वही हुआ। आज तो ये कौम की भाषा बन गई है और लोग कोई नहीं पढ़ रहे। यानी हम भाषा के लिए बढ़ाने की वजह से हमने उसको संकुचित और मध्यम वर्गीय में रखा है। आज मेरा यही कहना है कि अगर भाषा, एक मिनट में खत्म, अगर हमको भाषा में कुछ अगर बदलाव लाना है, साहित्य में बदलाव लाना है, तो मैं यही कहूंगा कि आज साहित्य अकादमी हमारी है कि क्या हम भारत के एक भाषा से कभी जोड़े हैं।